Yes. So I'm talking about code for breadth first search traversal and depth first search traversal. Ayush had one question last week, so I thought that it's better to give you a demonstration of the code. So this is how I've represented my graph and how my graph looks like. My graph looks like this. Okay. One is connected with two, three, four is connected with two, three, five, six, and hence, hence further on. Just one thing, one caution that there were six nodes in my graph, but here I have taken seven nodes for easy management of the data structure. And as you can see at the zeroth place, I have initialized it to zero, right? Row and column both wise. See here also, row and column both wise, there are zero, zero. And one is connected with two and three. Two is connected with one, two is connected with four, three is connected with one, three is connected with four, four is connected with two, three, four, two, three, five, six, two, three, five, six, right? Five is connected with four, six is connected with four. This is how we will going to represent the graph. Also, you can use the adjacency list. That's up to you. And so how we represent that? You guys tried with right with the STL of the C++? Anybody who has tried the standard template library of C++? So generally, if anybody asks you to write your own program, then my suggestion is to include this library so that all the queue, stack, and everything is included. Otherwise, you need to write separately here. Let's say if you decided to have the queue, you need to include it like this. If tomorrow you decided to have stack, you need to do like this. So instead of that, it is better to include the complete library, right? So this is the thing. Let's write, let's start with what? Let's start with BFS. And this is a graph data structure. Now I will have start and end. That means from which vertex you want to start and what is your end vertex. This is how I will going to do. Let's have one variable which is equal to start. Okay. I hope you remember that unordered set. Remember? Oh, forgot. Unordered set. Yes, anybody remembering that unordered set? Can you hear me? Nobody is replying back. So anybody who tried with unordered set or no? Or you didn't try? Okay, let me include using namespace.
So I will have a queue because this is breadth first search, right? In breadth first search, we use queue data structure. Okay, now it's fine. This is the queue data structure provided by STL. This is not the queue created by me. And in queue, we have one push operation. And in this, I will add I. Along with that, I need to print that I. And I will also insert visited. Visited set will be used to know which nodes have been visited. Okay. If at any point of time you are not clear what I'm doing, then please let me know. I need to check whether it is empty or not. So till my queue is not empty, I will keep on printing it, right? See, if you can see here, when I'm doing traversal queue.pop, then the return type is void. So if I have to get the return type, then I need to get the front. So what I'm doing here is I'm popping out from the queue. This operation is called as dequeue operation. And then I will run a for loop. For loop means for loop is for getting all the nodes which are neighbor of I. All the neighbors of I will be inserted into the queue. Also, I will mark them visited. Let me use J variable here. So I have not initialized J variable. Let me do that also. Where shall I initialize J variable? Will it be fine if I do here? Will it be better if I do here or here? What's your opinion? Here I also need to check that there should be an edge between that graph between two nodes, right? If there is no edge, if it is 0, then that means we will not push it into the queue. Along with that, this visited set, it should not be there inside the visited set. If you, I think our BFS is done, but I'm sure you guys must be having some confusion. So let me give you a brief here, what I'm actually doing. So this visited, it's a set, it's a set, it's an unordered set. Why I have taken unordered set? Because search is O1. Now your question would be, why you have not taken array? Take array of size 7 or 8, right? And as you are visiting each of the node, mark that node as 1. Like if you have visited, so this is my array, I could take like this also.
If I visited 1, then mark it as 1. If I visited 3, then mark it as 1. If you visited 2, mark it as 1. So this is how also we could have done. But the problem with this approach is, if there is a node of 100, then what will you do? Right? If there is a node with data 100, then what will you do? You cannot do anything. You will not create array of size 100. So instead of that, the better approach is use unordered set. Unordered set. So let's say I'm starting from here, breadth first search. Then I will print 1 and push it inside the queue. So your queue contains 1. Then I'm running a while loop where your queue is not empty. Along with that, I'm inserting 1 into the set. While your queue is not empty, what will you do? You will pop from the queue, pop, and store all the neighbors of 1 inside the queue. So 2 and 3 will be stored inside the queue. So your queue will contain 2 and 3, right? And along with that, you will mark visited. That means your visited set will contain 1, 2, 3. 1, 2, and 3. And this is how you will run. Next, your queue will run. It will have 2. It will check the neighbor of 2, which is 4, right? So 4 will also be stored inside the queue. Hai. And then 3, then 4, then 4 neighbor will come, 5 and 6. Anybody having any doubt? So this is what I'm doing here. So I just need to do C out here, C out J. Now your one question could be, if you haven't tried this, unordered set, then your question would be, what are you doing this? What is this? Hai na? You must be asking, what is this? What kind of coding is this? So let me tell you. Let's say your unordered set contains 2, 3, 4, 5. Okay. And you are trying to search 3. Then what will you do? You will do unordered set dot find 3. If it is found by the iterator, then it will return that 3. Otherwise, it will return the end. Getting my point? अगर उसे 3 मिल गया तो वो रिटर्न कर देगा 3 को. Find. अगर नहीं मिला तो वो end को रिटर्न करेगा. तो मैंने यहाँ एक कंडीशन लिखी है, ये देखिए हाईलाइटेड वन, विजिटेड सेट डॉट फाइंड जे को ढूंढिए विजिटेड सेट में. अगर वो एंड के इक्वल है, इसका मतलब वो विजिटेड सेट के इनसाइड नहीं है. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो. क्लियर है ये जो मैंने क्या कहा? तो इसको रन करते हैं. कैसे रन करेंगे? BFS ग्राफ. स्टार्ट में मैं 1 नोड पास कर रहा हूं. 1 का मतलब है कि 1 से स्टार्ट करेंगे और 7 कर रहा हूं मैं. 7 मतलब 7 तक चलिए. आप चला के देखते हैं चलेगा या नहीं. देखते हैं. वन ही प्रिंट हुआ. क्या लगता है क्या गलती हो गई? बताइए भाई. अब एरर फाइंड करने में हेल्प करिए. ओनली 1 इज प्रिंटेड, दैट मींस यहीं तक चला. सो साइज ऑफ अनऑर्डर्ड सेट विल नॉट बी 100. नहीं, हाँ मैं उस पर आता हूँ. आयुष, ठीक है, आयुष की बात पहले ले लेते हैं. साइज ऑफ अनऑर्डर्ड सेट विल बी द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इनसाइड इट. अगर आप 100, 101, 102, 103, 104 इंसर्ट करोगे तो सिर्फ उसका साइज होगा 5. एंड इफ यू टेक द एरे,
then its size will be 105. So definitely it is better to use unordered set, right? Clear? Unordered set will size will be 5 if there are 5 nodes. Clear, Ayush, or not? अब आप बोलोगे मैंने एरे क्यों नहीं लिया, इसका जवाब दीजिए। एरे में स्टोर कर लेता ना 101, 102, 103। कोई इसका आंसर दो भाई, जब तक मैं एरर देखता हूँ। एरे क्यों नहीं लिया मैंने? हाँ हाँ बताइए भाई। नो आंसर। एरे लेने से क्या नुकसान हो जाता? नो आंसर। मैंने अनऑर्डर्ड सेट क्यों लिया है ये बताइए ना, डेटा स्ट्रक्चर क्यों चूज करा है अनऑर्डर्ड सेट? यहाँ मैंने आई लिख दिया इसलिए। हाँ आयुष, वेक्टर क्यों यूज करा? क्या हो रहा है भाई? अनऑर्डर्ड सेट क्यों यूज करा वेक्टर? मतलब आप कोई डेटा स्ट्रक्चर लेते हो तो कोई रीजन होना चाहिए ना, या नहीं ऐसे ही ले लो कुछ भी? जस्टिफाई करने की कोशिश करिए। यस, अदर्स प्लीज टेल मी which data structure will you choose and why I have taken this unordered set here। बताया तो था लास्ट लेक्चर में। हाँ सर्च ओवन है ना। Ayush is saying he has taken vector. The issue with vector is search will be on। Yes, सर्च on होगी ना, या और कम होगी? set is storing only values which are 1। array is initialized with matrix size sets। नो ये तो कोई रीजन नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हो सिद्धार्थ? विजिटेड के लिए मैंने अनऑर्डर्ड सेट लिया है, राइट सिद्धार्थ? आई एम नॉट श्योर यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट। मैट्रिक्स कहां से आ गया? सेट भी ले सकता था मैं, सेट याद है या नहीं याद? सेट में सर्च कितना होता था, लॉग एन ट्री से स्टोर करते थे। अनऑर्डर्ड सेट में सर्च ओवन होता है, ये रीजन है। बताइए किसी को डाउट है इस कोड में? आई एम टॉकिंग ओके, but I was not able to understand what you are trying to say। Set is storing only values which are 1। So, so this is the code of breadth first search। See, I am using Q data structure provided by the STL and unordered set। This is it। I am talking. How I use in array search is O1। If you are storing using indexes, which I'm sure you are talking about that thing only, then tell me how will you store 1000? If your graph is like this, one thousand, 2000,
3000. Where will you store in the array? Yes, Ayush. Not clear array versus set search time. None of your mic is working क्या? थोड़ा मतलब बोलिए कि exactly issue क्या है? Yes, it is data Ayush. Okay. ठीक है, माइक नहीं चल रहा तो let me try to help. So array में I think सिद्धार्थ का क्वेश्चन ये है why we are not taking array? How set is better than array? If I take array, then where will I store it? Let's say the values are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So if I store it in array like this, and I have to check whether 3 exists or not, then I need to do the linear search, right? Which will be on. Instead of this, what people are doing, and usually when you will search internet, you will see the examples that they are using array, and they are using like कि अगर array 1 आया है ना तो 1 इंडेक्स को 1 मार्क कर दो, 2 आया है तो इंडेक्स 2 को 1 मार्क कर दो। और वो ये कभी नहीं बताते कि अगर 1000 आया है तो क्या मार्क करूं मैं, है ना? सो अरे अरे भाई, लेकिन आयुष ये बताओ, चलो ठीक है, एक सेकंड, अभी सिद्धार्थ आपको क्लियर हुआ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं आयुष आप पे भी आता हूँ, लेकिन आप दोनों की बातें वैसे सेम ही है, अच्छी बात वो है। तो आयुष कह रहे हैं कि A0 1000 है, A1 2000 है, ठीक है आयुष? अब आपको चेक करना है कि मैंने 1 को विजिट करा या नहीं करा, मतलब 2000 को मैंने विजिट करा या नहीं करा। ये मैं कैसे चेक करूंगा, ये मुझे बताओ आयुष। Ayush, my question is, now you need to check whether you have visited 2000 or not. How will you check it? By the concept that you have mentioned. तो फिर उस केस में तो हम इंडेक्स से चेकिंग कर रहे हैं ना। हाँ, आप इंडेक्स से चेकिंग कर रहे हो, लेकिन आप कैसे करोगे? 2000 को कैसे सर्च करोगे, कहाँ? जैसे कि तो अगर हमारे पास 10 एरे है तो 10 साइज का हाँ हाँ, विजिटिंग बना लिया, फिर अगर ठीक है, जैसे जिस भी इंडेक्स पे आए उसको सर्च कर लिया कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। लेकिन कैसे, आपको कैसे पता चलेगा 2001 इंडेक्स पर है? 2000 तो 2 इंडेक्स पे भी हो सकता है ना? नहीं, बताइए। सर एक सेकेंड। हाँ सिद्धार्थ, ये स्पेस की वो वाली बात ही नहीं है। चलो आप मुझे ये बताओ कि ग्राफ मैंने ऐसे बनाया है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, बाकी भी सोचो तब तक आयुष, क्या पता मैं गलत हूं, है ना? नाउ यू गाइज आर वेरी मैच्योर, यू नो मोर देन एनीबडी एल्स। चलिए मैप बनाते हैं, क्या है ना, असली एग्जांपल ले लेते हैं। दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे है ना बेंगलोर, बेंगलुरु लिख देता हूँ। यही स्पेलिंग है क्या बेंगलुरु की? स्पेलिंग भी आजकल इतनी टफ हो गई है। अब मुझे बताओ यार, आप कौन सा एरे यूज करोगे इनको स्टोर करने के लिए? दिल्ली को स्टोर कैसे करोगे? वर्टेक्स करेस्पॉन्ड टू इंडेक्स। तो वर्टेक्स का नाम ना सिद्धार्थ, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग ना। अब ये बताओ, वर्टेक्स का नाम दिल्ली है, अब क्या करोगे? तो मैंने जो वे सजेस्ट करा उसमें तो दिल्ली स्टोर कर लो, अनऑर्डर्ड सेट को बना दो स्ट्रिंग, है ना? असली में ग्राफ यूज कहाँ होता है?
उबर ओला वगैरह सब ग्राफ यूज करते हैं, डिजिक्स्ट्रा वगैरह है, ठीक है, पढ़ेंगे ना अभी हम। तो वो दैट आई डिडंट थॉट ऑफ। पहले तो सिद्धार्थ मुझे ना अगर आपका माइक चल पाता तो थोड़ा बेटर रहता, क्योंकि आई वांट दिस कॉन्सेप्ट टू बी क्रिस्टल क्लियर। Others, Suraj, Vidit, Arbina, is it clear why we are using unordered set and not anything else? अगेन आई एम रिपीटिंग कि इंटरनेट पे आप देखोगे तो वो तो एरे में ही करा रहे हैं, लेकिन वो एग्जांपल ही सिंपल सा ले लेते हैं, है ना। एग्जांपल इतना सिंपल है कि एरे में स्टोर हो जाता है। दिल्ली को स्टोर करके दिखाओ एरे में, करो, फिर क्या होगा बताओ। असली में तो यही होता है ना, आपका घर होगा कहीं एफ ब्लॉक, जी ब्लॉक, वो सब होते हैं ना ग्राफ में स्टोर। तो वो तो सेट में करोगे, अनऑर्डर्ड सेट स्ट्रिंग टाइप का, या कहाँ करोगे, 1 2 3 करोगे इसको। अब अगर आपने अब आपने ऐसे कर लिया, डिसीजन ले लिया कि नहीं मैं तो एरे यूज करूंगा, मुझे एरे ही अच्छा लगता है, एरे ऑफ स्ट्रिंग ले लिया। एरे 0 में आपने स्टोर करा दिल्ली, एरे 1 में स्टोर करा बेंगलुरु, एरे 2 में स्टोर करा कोलकाता। तो आपको तो हर बार ये एरे सर्च करना पड़ेगा, है ना, लूप में, यहां से यहां से यहां से लूप में ही तो चलाओगे, और कहाँ चलाओगे, ओएन में आएगा आंसर। ओएन में करोगे तो कितना स्लो हो जाएगा। ओएन में थोड़ी ना देना है आंसर, ओ1 में देना है ना। ओ1 में कौन आंसर देगा आपको, अनऑर्डर्ड सेट। अब बताइए आयुष और सिद्धार्थ, आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़े, नहीं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ने का कभी भी फायदा नहीं जब तक क्लियर ना हो चीज। यस आयुष, सिद्धार्थ क्लियर हो गया ना ऐसे ही, हाँ मतलब चलो आगे ही बढ़ जाए। आयुष, आर यू देयर और, हेलो यार, 1 मिनट लो। अरबीना, यू आर नॉट रिप्लाइंग, यू आर नॉट लाइकिंग ग्राफ डिस्कशन। तब तक मैं, आयुष रिप्लाई कर रहे हैं तब तक मैं बीएफएस का ही कोड लिख दूं, नहीं। अच्छा अरबीना थैंक यू, बीएफएस का लिख देता हूँ कोड। बीएफएस में आप सबको याद हो तो हम क्या यूज करते थे, स्टैक, स्टैक से बनाते हैं। इंट स्टार्ट, ये कॉमा लगाने के बाद एक स्पेस दे दिया करो, कोड अच्छा लगता है, वरना तो समझ में ही नहीं आता क्या लिखा है। इंट आई इज इक्वल टू स्टार्ट, फिर से थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यार, यही ले लेता हूँ, ठीक है, विजिटेड ही, इसमें भी विजिटेड यूज होगा। क्यू की जगह स्टैक है ना, किसी को डाउट है स्टैक क्यों ले रहा हूँ, डीएफएस है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसलिए स्टैक लिया है। चला लेते हैं, अब क्या गाड़ी चलाएंगे, वही स्टैक इज नॉट एम्प्टी, स्टैक। अच्छा ट्रेवर्सल, इसका नाम चेंज कर देते हैं, ट्रेवर्सल स्टैक एम्प्टी। जब तक ये एम्प्टी नहीं है चलाते जाओ गाड़ी, है ना। आई इज इक्वल टू ट्रेवर्सल स्टैक डॉट टॉप, ठीक है, क्योंकि पॉप करने से ना वॉइड आता है रिटर्न, पॉप से पॉप करता है, देखो ये पॉप किया, इसका देखो रिटर्न टाइप आ रहा है वॉइड, तो मैं हमेशा टॉप करूंगा, पहले निकालूंगा फिर गाड़ी आगे चलाऊंगा, या सी आउट कर दे रहा हूँ, सी आउट आई एंड एल एल, प्रिंट करा देते हैं, है ना। और ये तो वही है सेम, इंट आई इंट जे इज इक्वल टू, अच्छा इंट तो चलता नहीं ना ऐसे, सी प्लस प्लस है, इंट जे, जे इज इक्वल टू 0, जे स्पेस दे दो एक,
जे स्मॉलर देन क्या, एंड, और ये जीरो की जगह वन करना होगा। मैं क्यों? क्योंकि मैंने जीरो पे जीरो जीरो स्टोर कर रखे थे। आप अगर जीरो जीरो पे जीरो स्टोर नहीं करोगे तो जीरो लिख देना, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्टैक में डालेंगे और क्या करेंगे। पुश, किसको पुश करूंगा, जे को, और विजिटेड में भी इंसर्ट कर दूंगा जे। इसके साथ साथ मेरे को सबसे पहले यहाँ स्टैक में इंसर्ट करना पड़ेगा, वरना तो मेरा पहला लूप ही नहीं चलेगा। है ना, समझ में आ रहा है। ट्रावर्सल डॉट पुश, किसको, आई को, और आई को विजिटेड में भी डाल देते हैं कि विजिट कर लिया है हमने एक बार, अब फिर से विजिट करने की जरूरत नहीं है इसे। तो ये हुआ। साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट कंडीशन भी डलेगी कि भाई एच भी तो होना चाहिए, अदरवाइज क्या फायदा। एच इज ऑल्सो नीड्स टू बी देयर। इफ देर इज नो एच, then there is no point of visiting it. I mean, there is no concept of visiting it. कैसे विजिट करोगे आप विजिटेड सेट। ये थोड़ा सा अजीब सा है इसमें, कि अगर आपको देखना है, बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता, ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। ये है इसमें कि अगर ये एंड के इक्वल है तो इसका मतलब है नहीं मिला, ऐसा ही है। इसलिए मैंने बोला एसटीएल थोड़े ट्राई कर लेना, बहुत हेल्प करेंगे एसटीएल। एसटीएल के बिना हैकर रैंक वगैरह सॉल्व नहीं होने वाले, टाइम नहीं होता ना इतना। तो ये है डीएफएस। क्या कहते हो, सही है या किसी को कोई इशू लग रहा है इसमें। मेरे को वन से स्टार्ट करना है, सेवन। चला के देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया बीएफएस और ये डीएफएस। देखो बीएफएस का आंसर है 1 2 3 4 5 6। चेक कर लेते हैं इसे, क्या पता आंसर ही ना हो। 1 2 3 4 5 6 यही आंसर होगा ना बीएफएस का। किसी को डाउट हो रहा हो तो बताइए भाई। बीएफएस का आंसर देखते हैं, 1 3 4 6 5 2। 1 3 4 6 5 2 है ना। पहले हम यहां से यहां गए, डीएफएस की बात कर रहा हूं, पहले यहां से यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, है ना। बताइए अब किसी को डाउट है इसमें तो, ये वाले कोड में। ये रहा डीएफएस का कोड, ये रहा। अब आप कह सकते हो यार, या सिर्फ फोर से स्टार्ट करके दिखाओ। चलिए वो करके देखते हैं, फोर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बीएफएस डीएफएस दोनों को। चला के देखते हैं क्या होता है, होता भी या नहीं होता कुछ, क्या पता चले ही ना। चल गया। तो देखिए इसका आंसर क्या है, बीएफएस का 4 2 3 5 6 1। चेक कर लेते हैं क्या आंसर आया। 4 2 3 5 6 1। 4 2 3 5 6 1, यही तो होगा ना बीएफएस। 4 2 3 5 6 1। चेक कर लीजिए, किसी को डाउट हो रहा हो तो बताइए। 4 2 3 5 6 1 आएगा बीएफएस, और डीएफएस 4 6 5। ये डीएफएस है, कोई गलती तो नहीं है, चेक करिए। 4 3
कहाँ है डीएफएस? अच्छा ये 465312 यही होगा ना डीएफएस? तो आप चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर यू वांट टू स्टार्ट। ऐसे ही चलता है उबर वगैरह सिस्टम जो है, ठीक है। उबर वगैरह ओला में ये सब क्या करते हैं, नोड्स बना देते हैं आपके घर के पार की। जैसे आपने उबर ओला यूज किया हो तो वो बोलता भी है एग्जैक्ट लोकेशन पिक करो। जैसे आपने कभी कभी लोकेशन डालोगे ना, ये वाली पिक हो जाती है थोड़ी दूर की। क्यों? क्योंकि नोड जो है ना वो थोड़ी दूर है। उन्होंने नोड्स बना दिए हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सारे के सारे प्रोग्रामर्स, उबर हो गया, ओला हो गया, जोमेटो हो गया, गोजेक हो गया, सारी कंपनीज यही कॉन्सेप्ट यूज कर रही हैं। नोड्स पहले से डिफाइंड है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इफ नॉट देन प्लीज लेट मी नो। तो ये है। आप सबको मैंने जब स्टैक और रिकर्जन पढ़ाया था तो मैंने ये बोला था कि जहां स्टैक यूज होता है वहां रिकर्जन यूज हो सकता है, जहां रिकर्जन यूज होता है वहां स्टैक भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये तो आइटरेटिव प्रोसेस है जो स्टैक यूज कर रही है। अब इसको रिकर्जन में भी लिख सकते हैं ना, इसको रिकर्जन में भी लिख सकते हैं। समझ में भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए मुझे। अब रिकर्जन में लिखो, कोई हेल्प कराओ यार रिकर्जन। रिकर्जन तो थोड़ा हो जाता है, क्या करें? विजिटेड तो ले ही लेते हैं ना। इस बार हमें स्टैक लेने की जरूरत नहीं है, रिकर्जन में तो स्टैक खुद ही हो जाता है, राइट। स्टैक लेने की जरूरत नहीं है इस बार। चलाते हैं। स्टार्ट को चलाना है, ठीक है, स्टार्ट को ढूंढना है। स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ये जो कंडीशन मैं लिख रहा हूं ना, फिर से मैं बार बार बताते जा रहा हूँ क्योंकि आपको ये अजीब सी लग रही होगी देख के। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि मैंने स्टार्ट को ढूंढने की कोशिश करी विजिटेड में, लेकिन वो मिला नहीं, इसलिए एंड रिटर्न करा उसने। अगर ये एंड के इक्वल है इसका मतलब है स्टार्ट विजिटेड में एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो रोकिए मुझे, मैं समझा दूंगा। सी आउट करेंगे स्टार्ट, साथ साथ में विजिटेड में डालोगे आप। विजिटेड में क्यों डालेंगे? जिससे बार बार उसको ट्रवर्स ना करें। इंसर्ट क्या करूं? स्टार्ट। और क्या करूंगा? फॉर लूप चला देते हैं यहाँ पे। आई जे एंड, है ना, आई प्लस प्लस इसको वन ले। ठीक है, इसको ही कॉल करूंगा वापस, और क्या करूंगा? ग्राफ, स्टार्ट की जगह मैं यहाँ पे आई लिखूंगा, इसका ध्यान रखना। कहीं स्टार्ट को ही वापस कॉल कर दो, फिर तो चलता ही रहेगी दुनिया भर की गाड़ी। तो चला लेते हैं। तो ये हुआ DFS यूजिंग रिकर्जन, है ना। ठीक है, ये हुआ। देखते हैं चलता है नहीं चलता। ये देखो एक क्या चले ही जा रहा है। बताइए क्या गलती करी मैंने? ये रहा कोड, कुछ गलती कर दी मैंने, बताइए क्या। जल्दी जल्दी, इतनी देर में बता देना चाहिए। कभी कभी ना क्वेश्चंस ऐसे ही दिखेंगे आपको, बोलेंगे गलती निकालो हमारी। तो सर वो विजिटेड का वो ऐड नहीं हुआ कि ठीक अगर है, वो विजिटेड नहीं है तो। ठीक है, गुड गुड। गलती निकालना सीखो यार।
क्या लिखूं? क्या लिखूं यहाँ पे यार? स्टार्ट ऐसे चलेगा ये? उसके बाद फिर से यही कहानी कि विजिटेड में नहीं होना चाहिए। जे की जगह आई आएगा। और इसको क्लियर हुआ ये क्या कराए या नहीं? अभी 4 ही आया, क्या गलत कर रहा हूं मैं? बताइए भाई। क्या लगता है? अगर आप चाहते हो मैं कहीं सी आउट लिखूं तो वो भी मुझे बता दो चेक करने के लिए। यहाँ आई आएगा है ना? देखिए अब चला के। अभी भी चले जा रहा है, बताइए कहाँ गलती है? So लाइन 67 का मतलब क्या है? 967 का मतलब है कि ये जो स्टार्ट है ना, अनविजिटेड विजिटेड है ना, हाँ इसके जी सर। अंदर स्टार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। विजिटेड है ना, विजिटेड, उसके अंदर स्टार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा ये बताओ, रिकर्जन में ये जो मैं बार बार कॉल कर रहा हूं, है ना, ये पता कैसे चलेगा कि ये मैंने सेट करा है? कहने का मतलब ये है, यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं। रिकर्जन में ऐसे स्टैक्स होते हैं, F4 F3 F2 F1 है ना। F4 को पता होगा F3 ने अगर कुछ सेट करा है वेरिएबल तो, या F3 को पता होगा F2 ने कुछ सेट करा है या F4 ने कुछ सेट करा है। कोड में वापस आके बताता हूँ। देखिए मैं विजिटेड डाले जा रहा हूँ बार बार, ठीक है, विजिटेड में डाले जा रहा हूँ स्टार्ट को, लेकिन ये विजिटेड तो लोकल वेरिएबल है ना, पता कैसे चलेगा? हम्म समझ में आ रहा है? दिस unordered set is local variable inside this DFS recursion. When this is called again and again, पहले आपका देखिए क्या कॉल होगा, ये कॉल होगा ना, ग्राफ लेट्स से 3 लेट्स से 7। अब ये जो फंक्शन कॉल गया, इसमें पता नहीं है ना किसी को ये कि क्या है, तो मैं क्या करूं, इसको क्लास लेवल पे कैसे बनाऊं? विजिटेड को कुछ करते हैं ना, याद है? बताइए, आपको पता है? सॉरी, नहीं सुनाई दे रहा। ले चलते हैं, लाइन से चलते हैं और वहां से कॉल कर देंगे क्या विजिटेड। करते हैं? जैसे इसको बाहर डिफाइन कर दिया कि विजिटेड अच्छा, वाला बना के, और उसको उसी फंक्शन में कॉल कर देते हैं विजिटेड नाम से। स्टैटिक बना दूं उसकी जगह? तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहीं पे स्टैटिक लिख दूं तो? चल गया। आप क्या कह रहे थे आयुष, फिर से बताना। कि उसको ना बाहर ले जाके और वहां से उसके साथ कॉल कर देंगे। जैसे यहाँ पे तीन को कॉल किया है ना, ऐसे? तीन आर्गुमेंट को, तो फिर चार को कर देंगे। कैसे या ऐसे? मेन में, हाँ जी। यहीं पे लिख दूं? यहाँ से शायद कॉल ना हो। क्यों?
तो क्या करूं, आप क्या कहना चाह रहे हो? तो जैसे इसको मेन में डिफाइन करके और फिर अच्छा। जहां से डीएफएस को कॉल किया वहां पे विजिटेड को भी कॉल करके और उधर इंट ओ, बूल अच्छा, विजिटेड। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूं, ये कहना चाह रहे हो आप? यस सर। ओके, ठीक है, सही कह रहे हो आप। वैसे एक बार यहाँ से चला के देखिए, चलना चाहिए या नहीं? चल गया। ये भी कर सकते हो, है ना? आई होप सबको समझ में आ रहा हो या नहीं। या आप इसको यहाँ पर लेके स्टैटिक बना दो, स्टैटिक बनने से क्लास लेवल पे बन गया वो वेरिएबल। तो हर किसी फंक्शन को पता है क्या हो गया भैया। स्टैटिक ऐसे नहीं लिखते क्या? चलो, पता नहीं क्या, ठीक है। तो देखो, ये भी रिकर्जन का तरीका है, ठीक है। रिकर्जन को यूज करके कर सकते हो। देखिए आंसर ये और ये डिफरेंट है। देखिए इसमें आंसर है 421356। 421356। तो पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए। सो इट्स ऑल्सो फाइन, है ना? देखिए इसको किसी को डाउट है तो बताइए। दिस इज द कोड, यू कैन ऑल्सो ओपन इट। एक बार अपने अपने लैपटॉप में खोल के देख लीजिए। सर वो मैं बीएफएस वाले में ये कह रहा था, जैसे कि अगर हमने कोई जैसे हमारा A0 पे कोई वो है, उसका लिंक बन रहा है A4 के साथ। ठीक है। तो जैसे हम A4 पे पहुंचे, हमें ये पता है कि A4 पे है, तो हम डायरेक्ट A4 पे चेक कर सकते हैं ना कि क्या वो विजिटेड है कि नहीं है। A4, लेकिन A4 है क्या, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो जैसे कि हमने कोई भी लिंक हाँ, कोई भी वो बनाया हुआ है, जैसे हमारी बताओ कोई। मेरे को, ये बताया मैंने, ये वाला ग्राफ बना लिया। अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे हो। तो सर जैसे हमने इसको स्टोर कर दिया, एरे बनाया जिसको 1 को 0 पे स्टोर कर दिया, 2 को 1 पे, ऐसे स्टोर कर लिया। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे 1000 है, 2000 है, 3000 है, अब बताओ क्या करोगे आप? जैसे 1000 को फर्स्ट पे स्टोर कर लिया, ठीक है, अब? उसको सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। ठीक है, अब जब सेकंड पे आए आपको चेक करना है 1000 कहाँ है, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ है? तो जैसे हमने इसको तो पहले वो कर लिया ना कि हमें पता है कि लिंक कहाँ पे बन रहा है उसका। आप, ठीक है, आपने 1 को विजिट करा है, ठीक है। आपने 1 को यहाँ पर स्टोर कर लिया, 1000, ठीक है। यस सर। अब ये बताइए, यहाँ था 500। अब इसको कहाँ करोगे? हम्म। यस आयुष, तो 500 सोच रहे हो? शायद उसके बाद आ जाएगा ना, किसके? 4000 के बाद। 4000 के बाद? ये कैसे वैसे डिसीजन ले रहे हो? चलो ठीक है, आपका, आपने जो कहा मैंने मान लिया। अब ये बताओ कि आपने 4000 विजिट कर लिया, ये कैसे पता चलेगा कि 4000 A3 पर है, ये कैसे पता चलेगा? उस पे हमने वो बनाया हुआ है ना, जैसे पहले से उसको 1 सेट कर रखा है, जैसे अगर उसके हाँ, अंदर लिंक। अरे लेकिन ये स्टोर स्टोर कहाँ पर है इस इंफॉर्मेशन? वो आरएम में होगी ना। नहीं, एरे में स्टोर है, लेकिन 4000 थर्ड इंडेक्स पर है, 500 जो है फोर्थ इंडेक्स पर है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ है? ये सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बोलूं, एरे में कोई नंबर सर्च करना है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? अगर नंबर सर्च करना है ON। तो यही बात है ना यहाँ पर भी तो। अदरवाइज आपको इंडेक्स बेस्ड सर्चिंग करनी है, जो आप कहना चाह रहे हो। उसमें ओवन है, आई एग्री, लेकिन यहाँ तो ओएन है ना? नहीं, एग्रीइंग और नॉट? पे हम वो रन नहीं कर रहे ना। उसको हाँ जी। उसको सॉरी, आपकी वॉइस कट गई। हम इसमें रैंडम सर्च नहीं कर रहे हैं ना, अगर उसका लिंक बन रहा है तो ये उसी इंडेक्स को कर रहे हैं ना। आपका ऐसे ग्राफ बना हुआ है कुछ, ठीक है, सब नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बताओ कि कैसे आप ट्रेवर्स करोगे इसे हर बार पे? ये 100 है, ये 200 है, ये 5000 है, ये 6000 है, ये 3000 है।
आपने स्टार्ट करा यहां से, ठीक है, 100 से आपने 100 डाल दिया, ठीक है आयुष। अब आप बताओ अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे। क्यू आप विजिटेड जब कर रहे हो तो 200 और 2000 को डालोगे क्यू में, ठीक है आयुष, और 100 को नहीं डालोगे ना क्यू में, क्यों नहीं डालोगे, चलेगा ही क्या आयुष? इंटरनेट भी साथ देता है, कभी साथ नहीं देता। Others, are you clear with this or not? My point is, when you are at 5000 and 5000 is connected with 100, how will you make sure whether 100 is present in your array or not? You only need to traverse your array. Traverse का मतलब है for loop लगाओ, int I is equal to 0, int smaller than n, I plus plus. अनऑर्डर्ड सेट में क्या हो रहा है, अनऑर्डर्ड सेट में ना हैश टेबल बनी हुई है, हैश टेबल, और हैश टेबल में सर्च हमने देखा है O1 में होता है। किसी को डाउट है तो बताइए। Meanwhile, just have a look at the code also, so that there is no doubt. We can move ahead now after that. Yes, Siddharth, the thing is that why people take array, because they take simpler examples. In real life, there are not simpler examples, right? Like you guys know about the Aadhaar number, right? But can we store Aadhaar number in the array? See, Aadhaar number is 12 number, 12 size. There are 12 digits number. So you cannot create an array of such a large size. It is better to use linked list or set or something like that. Set would be a better approach because one number is associated with one person only. Array is not feasible. Whatever examples you are seeing on the internet are simple examples. है ना? Think about the larger perspective. That's why I told you in the beginning to use templates as much as possible or generics in Java if possible. That's how coding is done in the production. अब बताओ उबर 1 2 3 थोड़ी ना लेगा, है ना, कि 1 असाइन कर दिया दिल्ली को, उसमें भी कितने सारे, कितना लेगा 1 2 3, या स्काई वैल्यू थोड़ी ना निकालेगा दिल्ली की, स्काई वैल्यू निकाल दी उसको स्टोर कर लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। दिल्ली को स्टोर करेगा ना, पूरे के पूरे दिल्ली को, स्ट्रिंग को, और उसको कहाँ स्टोर करेगा, सेट में। सेट इंटरनली क्या कर रहा है, सेट इंटरनली उसकी एसक्यूएल वैल्यू जो भी निकाल रहा है हैश टेबल में स्टोर कर रहा है। ये है कॉन्सेप्ट, यही आपको करना है। अदरवाइज इंटरव्यूअर विल से व्हाट इफ द साइज ऑफ द नोड इज 10 15 व्हाट इफ यू हैव 5 नोड्स सच एज 100 20 30 60 40, no you will not create array of size 100. I hope it is clear. If not, then please let me know. If you look into the code clearly,
Now let's talk about a bit about the time complexity. So as you can see, there are two loops. One loop is this and other loop is this. In Q, all the nodes will be inserted. So it will be n nodes, right? Similarly, I am running a loop for n number of nodes again. Let's say if it is a complete graph. What is a complete graph? Complete graph means each node is connected with every other node. In that case, the complexity would be O n square, right? Here the complexity would be O n square. However, if you take the adjacency list, then complexity will be lower. It will be O of vertex plus O of edges, which is nothing but equal to O of n, है ना? So if you take the adjacency list, then the complexity will come down. My suggestion to each one of you is take one approach. आप adjacency matrix ले लीजिए, कोई issue नहीं है. बस याद रखिए कि आप कोड कर पाए. कहीं आप adjacency list सिर्फ दिखाने के लिए ना लें कि आपसे कोड नहीं हो पा रहा, right? Along with that, remember about these data structures. If you do not know about the data structures, then there will be some issues, है ना? I hope you can understand the importance of data structure. All this push, insert, find, all these operations are O1. Otherwise, if you're taking array, vector, linked list, list, whatever you call DQ, your complexity will increase. So that is the thing. Right? Now I think we can move ahead. Or if there is any doubt, then please let me know. I hope you will be able to write BFS and DFS yourself. Ayush, you were having some problems in the last lecture. Do you want to point it out, or I mean it is done? Or your mic is not working? Sorry for the internet, guys. Internet is oxygen these days. It's working now. Okay, great. Good to know. I hope it is clear to everyone. During the interviews, I suggest you to have a strong internet. Otherwise, how will it be possible to take the interviews for the interviewers? Let's look into the few problems. Let's see one problem. This problem is called as job sequencing problem, and sometimes again some of the questions are asked for this. Job sequencing. Job sequencing means you have several jobs such as these jobs. And on each job there is a profit also, है ना? हर जॉब पे कुछ प्रॉफिट भी है, साथ साथ ये भी है कि डेडलाइन भी दे रखी है कि ये J1 जो जॉब है ये 20 प्रॉफिट है और इसको 2 घंटे में खत्म करना है, वरना मत करो. J2 को भी 2 घंटे में खत्म करो, वरना मत करो. J3 को 1 घंटे में खत्म करो, वरना मत करो. J4 को 3 घंटे में खत्म करो, वरना मत करो. और J5 को 3 घंटे में खत्म करो. मतलब ये है कि आप ऑफिस गए आज और सुबह के 11 बज रहे हैं. काफी ऑफिसेज लेट ही स्टार्ट होते हैं आजकल, ट्रेंड है. और सुबह के 11 बज रहे हैं और आपके पास काफी सारी जॉब्स हैं, आपके पास आपके मैनेजर ने दे रखी है और आपको बोला गया है कि इस जॉब से 20% प्रॉफिट होगा कंपनी को, इस जॉब से हमें 15% प्रॉफिट होगा, 10% होगा, 5% होगा, 1% होगा, है ना? और ये जो जॉब है ये अभी 11 बज रहे हैं, 1 बजे तक कर देना, 1 PM तक. इसको भी 1 PM तक कर देना, इसको 12 PM तक कर देना, बिकॉज क्लाइंट इज आस्किंग. इसको 2 PM तक, इसको 2 PM तक, ऐसा है. 11 AM स्टार्ट है और आपके मैनेजर आपसे बोल रहा है कि मुझे अभी के अभी 1 मिनट में बताओ आप कौन सी जॉब पिक करोगे. तो वो ये नहीं बोल रहा कि मुझे 3 बजे बताना, अभी के अभी बताओ कौन सा पिक करोगे. तो कैसे करेंगे आप जॉब सीक्वेंसिंग से करेंगे. आप कैसे करोगे? आप जॉब सीक्वेंसिंग से करोगे.
तो ये जॉब्स हैं आपके पास जो आपको करनी है। तो आप कौन सी जॉब कब करोगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो किस में है, वो इस जॉब में है ना। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें, J1 में है। और ये 2 घंटे तक खत्म करनी है, मतलब 1 PM तक खत्म करनी है। तो इस जॉब को मैं 12 to 1 PM के बीच में खत्म करूंगा, J1 को। ठीक है। अब J2 जॉब है जो मुझे 2 घंटे में खत्म करनी है, और इसमें प्रॉफिट सेकंड हाईएस्ट है। तो इसको मैं, देखिए अभी 11 बज रहे हैं, 12 से 1 मैंने ऑलरेडी अलोकेट कर दिया है, तो मैं J2 को यहां पे करूंगा। अब मेरे पास एक जॉब है ये, जो मुझे 1 तक करनी थी, 12 बजे तक करनी थी। लेकिन 12 बजे तक तो मेरे पास J2 करनी है जिसका प्रॉफिट ज्यादा है, तो मैं J1 को पिक ही नहीं करूंगा। अब J4 पे आ जाता हूँ। J4 को मुझे 2 PM तक खत्म करना है, तो मैं यहाँ पे J4 कर दूंगा। तो आपने अपने मैनेजर को बता दिया कि सबसे पहले मैं J2 करूंगा, फिर J1 करूंगा और J4 करूंगा, और इससे हमारा प्रॉफिट कितना होगा, इससे हमारा प्रॉफिट होगा 40 यूनिट्स, है ना। क्लियर हो गया। और आपने वहीं पे बोल दिया कि मैं J3 और J5 नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो ये करने पर होगा, J2, J1, J4। अब आपका साथी आया जिसको ग्रीडी एल्गोरिथम नहीं आता, वो बोल रहा है आपने यार ये आइडेंटिफाई कैसे करा, मैंने तो मैनेजर को बता दिया कि सबसे पहले मैं J1 करूंगा, फिर J3 करूंगा। उसने बोल दिया, मैंने J3 बोल दिया क्योंकि J3 12 बजे तक करना था। मैंने उसको बोला J3 करूंगा, और फिर उसने बोला, मैंने मैनेजर को बोला फिर मैं J1 करूंगा, और फिर मैंने मैनेजर को बोल दिया मैं J4 करूंगा। तो इसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, इसका नेट प्रॉफिट सिर्फ 35 हुआ, आपका नेट प्रॉफिट 40 हुआ। और मैनेजर ने आपकी सैलरी वहीं पे डबल कर दी और इसको फायर कर दिया कि भाई तेरे को आता नहीं है, ये देखो ये कितना अच्छा कर रहा है, ग्रीडी एल्गोरिथम लगा दिया इसने। तो आपका एक साथी आया आपसे पूछ रहा है कि यार आपने ऐसे स्पेशल क्या करा, आपने ऐसा स्पेशल क्या करा। तो आपने उसे समझाया कि देख, सबसे पहले पता है क्या किया कर, सबसे पहले सॉर्ट योर जॉब्स ऑन बेसिस ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले ये किया कर, आपने उससे ये बताया। ठीक है। सबसे पहले सॉर्ट कर दिया कर जॉब्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट द बेसिस ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम से हमें क्या लेना देना, हमें तो प्रॉफिट से लेना देना है। तो एग्जांपल के लिए आपने बोला ये अगर J1, J2, J3, J4, J5 है, और इसका प्रॉफिट है 20 यूनिट्स, इसका प्रॉफिट है 30, इसका 40, इसका 10, इसका 25, इसको आपको 12 PM तक करना है, इसको भी आपको 12 PM तक करना है, इसको आपको 1 PM तक करना है, इसको आपको 2 PM तक करना है, इसको आपको 2 PM तक करना है ना। ये है। तो सबसे पहले आपने उसे समझाया भाई इसको सॉर्ट कर दे तू। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, सॉर्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उसने, तो आपने उसकी पेन एंड पेपर लिया और ऐसे सॉर्ट कर दिया, J3, J2, J5, J1 और J4। J3 कब तक करने था, 1 PM तक। J2 कब तक करना था, 12 PM तक। J5 कब तक करना था, 2 PM तक। J1 कब तक करना था, 12 PM तक। और J4 कब तक करना था, 2 PM तक। उसने बोला फिर आपने बोला भाई इसको शॉर्ट जब कर दे तो अलोकेट कर दे। ठीक है, मेरे को J3 1 PM तक करना है, अभी 11 बज रहे हैं, तो टाइम को एक एक घंटे में डिवाइड कर, टाइम को एक एक घंटे में डिवाइड कर। सारी जॉब जो है ना वो इक्वल इक्वल टाइम की है, ये भी एक है कि 1 घंटे में खत्म हो जाएंगी। तो ये J3 को मेरे को 1 बजे तक करना है, तो मैंने टाइम को ऐसे दे दिया, इसको यहाँ पर J3 इंपॉर्टेंट याद रखो। J3 को मैं 11 से 12 नहीं दे रहा, सिंस मैं J3 को 1 PM तक कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको स्लॉट दिया 12 से 1। आई होप क्लियर हो रहा होगा ये। अब मैं J2 को 12 बजे तक करना है, मैंने J2 को दिया स्लॉट, और 1 से 2 को मैंने किसको दिया स्लॉट, J5 को। ये किया आपने, J2, J3, J5। और आपका फाइनल आउटपुट क्या आया, 30,
40 प्लस 25, 70, 95, ये आया बेस्ट आउटपुट। अब आप बोलोगे इसमें ग्रिडी क्या है, ये तो नॉर्मल चीज है ना? हाँ है तो नॉर्मल चीज, तो सोचने वाली बात है कि आपने ग्रीड यहाँ पर ना प्रॉफिट की सोची है। दिमाग ही तो चलना चाहिए, इंसान का दिमाग चल रहा है तो सब बढ़िया है, दिमाग नहीं चल रहा तो सब खराब है। यहाँ पर अगर आपका दिमाग में ये है कि मेरे को टाइम की ग्रीड है, तो आप गलत आंसर दोगे। ग्रीड इज ऑफ प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट। So first sort the jobs on the basis of profit. So what will happen is a lot of times questions are asked like this, मतलब इसको बेंट वगैरह करके ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन इसमें आपको हमेशा ऐसे ही करना होता है, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। कभी कभी आपने एग्जाम दिया हो, आपके पास 30 मिनट बचे होते हैं, आपको मैंने कॉलेज ये डेज याद दिला दिए, आपके पास 30 मिनट्स बचे हैं, और क्या होता है इस टाइम पे 3 क्वेश्चन बचे होते हैं। एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, और हर क्वेश्चन को करने में 15-15 मिनट लगेंगे। तो साफ सी बात है, आप ये वाला कर लोगे, ये वाला कर लोगे, ये वाला छोड़ दोगे। जबकि सीक्वेंस में ये नीचे होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आप क्वेश्चन 5 पहले करोगे, फिर क्वेश्चन 4 करोगे, है ना? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है तो बताइए। इस अप्रोच में जॉब सीक्वेंसिंग बोला जाता है इसे। काफी बार इंटरव्यूअर्स में क्या होता है, आपका ऐसे दिमाग चेक करने के लिए पजल टाइप का पूछ लेते हैं, कोड वगैरह कोई नहीं कराता है, लेकिन पजल टाइप का पूछ लेते हैं, तो ऐसे करना है इसे। यस, इसमें डाउट है तो बताइए किसी को। एक दो और एग्जांपल लूं क्या, या क्लियर हो गया? इफ इट इज नॉट क्लियर देन आई विल टेक मोर एग्जांपल्स, नॉट एन इशू। ओके, others please let me know if it is doubt in anybody's mind, then please let me know। पर्पस देखिए, हमारा लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ग्रिडी और डायनेमिक के, लेकिन हमें समझ में आने चाहिए। समझ में नहीं आ रहे तो रोकेंगे हम, वरना क्वेश्चन तो भरे पड़े हैं ग्रिडी के, 100 क्वेश्चन। लीड कोड वगैरह उठा के देखिए, लीड कोड हैकर रैंक आपको दे देंगे 100 क्वेश्चन। अदर्स आई होप इट इज क्लियर, नहीं तो बताइए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। एक और प्रॉब्लम आता है जिसको थोड़ा सा अजीब से नाम से बोलते हैं, इसको बोला जाता है नैपसैक। नैपसैक प्रॉब्लम, नैपसैक मतलब बैग, है ना? नैपसैक प्रॉब्लम। जैसे आपकी मम्मी ने, मम्मी नहीं, मम्मी तो ऐसे नहीं बोलेंगी, आपका मैनेजर ही बोल सकता है ऐसे, वो ही ऐसी बातें करते हैं कि मैं आपको एक बैग दे रहा हूँ और मैक्सिमम प्रॉफिट उठा के ला इस बैग में। ये वाली प्रॉब्लम वैसी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर प्रॉफिट है 10 5 1.5 10 5 15 7 6 18 3, ये प्रॉफिट है। और वेट भी है हर ऑब्जेक्ट का, 2 3 5 7 1 4 1, ये वेट है। और आपको ना बैग दे दिया गया है 7 kg का, 7 kg का आपको बैग दे दिया गया है, और बोला गया है कि मैक्सिमम प्रॉफिट उठा के लाओ, जितना ला सकते हो एक बारी में। क्या करोगे आप? जल्दबाजी में एक मिस्टेक हो सकती है कि आप सीधे प्रॉफिट देखना शुरू कर दो यार। जल्दबाजी में मिस्टेक क्या हो सकती है, सीधे आप प्रॉफिट देखो और उसको उठा लो कि यार मैं सबसे पहले तो इसको उठा लूंगा, ठीक है, फिर मैं, ये ज्यादा लग रहा है तो इसमें से मैं 2 किलो उठा लेता हूं।
देखिए तीन तीन केजी उठा लेता हूँ, है ना। 4 केजी तो ये उठा लिया, तो 18 प्रॉफिट हुआ। और इसका मैं 3 केजी उठा लेता हूँ, तो 9 प्रॉफिट हुआ। 9 हुआ ना प्रॉफिट, समझ में आ रहा है। 27 आंसर आ गया आपका। और आप खुशी खुशी आ गए अपने मैनेजर के पास कि देखो मैं उठा के ले आया 27। मैनेजर भी बेवकूफ है, खुश हो रहा है। ठीक है, मैनेजर भी काफी, मैनेजर जो है वो खुश हो गया कि चलो ये 17 केजी लाया। फिर एक और बंदा आया आपका, वो बोल रहा था कि यार सबका ना मैं वो निकालता हूँ, वेट अपॉन प्रॉफिट अपॉन वेट निकालता हूँ। तो उसने जल्दी जल्दी कैलकुलेट करा, 5, इसका 1.66, इसका 3, इसका 1, इसका 6, इसका 4.5, इसका 3। और उसने बोला सॉर्ट करता हूं मैं, सॉर्ट। जल्दी से सॉर्ट चला देता है वो, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, और कौन सा था तीसरा, क्विक सॉर्ट, जो एन लॉग एन में देते हैं आंसर, है ना, याद है ना। तो जल्दी से चलाया उसने, एन लॉग एन में आंसर निकाला, और आंसर में आया ये। सबसे पहले उठा लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये उठा लेता हूं, तो इससे 1 केजी वेट हुआ। अभी कितना वेट बचा, 6 केजी अभी भी बचा है। और इसके बाद कौन सा उठाएं, इसके बाद ये उठा लेते हैं। अभी भी 4 केजी अभी भी बचा है, फिर ये उठा लेते हैं, है ना। अब शायद हो गया सब, क्योंकि 4 + 5 + 7 हो गया। प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट निकला 10 + 6 + 18, 34। अब ये वाला बंदा, आप में से कोई गया मैनेजर के पास, देखिए मैं तो ये लाया हूँ, कौन कौन से लाया हूँ मैं ऑब्जेक्ट, मैं लाया हूँ 1, 5 और 6। ये बंदा कौन सा लाया था, ये लाया था, ये लाया था 6 प्लस थर्ड का भी सिर्फ 3 ही लाया था पार्ट्स, याद है ना। और ये 156 पूरे के पूरे उठा के ले आया। तो मैनेजर बोलेगा वाह यार तूने तो कमाल कर दिया, तू ही हमारा शेर है। इसको मेडल दिया और इसको क्या फिर से फायर कर दिया। तो ग्रीडी एल्गोरिथम में यहाँ पे क्या ग्रीड है फ्रेंड्स, फाइनली, that if a problem like this is given to you, then you need to calculate weight upon profit, profit upon weight, not the weight upon profit, profit upon the weight, है ना। That will give you a good measure. After finding profit by weight, you need to sort it. Sort it means सबसे पहले 6, फिर 5, फिर 4.5। साथ में याद रखना, ये नैपसैक प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रीडी में, ये वो वाली प्रॉब्लम्स हैं जहां पर ऑब्जेक्ट्स ब्रेक हो जाते हैं। मतलब अगर 5 केजी नहीं तो 3 केजी उठा लो, जैसे सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं। ऐसा नहीं, लैपटॉप लैपटॉप वाली प्रॉब्लम नहीं है, लैपटॉप वॉशिंग मशीन वाली प्रॉब्लम नहीं है कि लैपटॉप या तो पूरा उठाओगे या नहीं उठाओगे, वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। वो वाली प्रॉब्लम डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली प्रॉब्लम बन जाती है। लेट मी रिपीट इट अगेन, व्हाट आई एम सेइंग इज, here the objects are divisible. By divisible I mean to say that if you cannot pick up the 10 kg, then you can pick up the 8 kg, you can pick up the 5 kg. It is not like appliances or laptops that if I cannot pick up the washing machine of 10 kg, then I will pick up a washing machine of 8 kg. It is not possible in that case, right? So here the objects are divisible. Only then you will use greedy, otherwise you will use dynamic programming that we will study in the next lecture. I hope things are getting clear to everybody. Any doubt in this? This is called a knapsack problem. No doubt. Looking simple, greedy वैसे इतना टफ है नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल ही सोचना है। एक लास्ट चीज और देख लेते हैं, लास्ट चीज है आज की। इसको बोला जाता है दिजिक्स्त्रा। दिजिक्स्त्रा बोला जाता है स्पेलिंग में
DIJ, फिर आई नहीं है, फिर के आ जाता है, DIJKSTRA, दिजिक्स्त्रा। अगेन ये वाला एल्गोरिथम बहुत यूज किया जाता है इन कंपनी सच एज उबर, ओला, डिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट वगैरह करने के लिए कि आपका ये ड्राइवर है, यहाँ पर है आपका ड्राइवर और ये बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप सब लोग, तो डिस्टेंस क्या होगा वो सब निकालने के लिए आप सब ने शेयर राइड बुक कर दी है, तो क्या होगा। डायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड के लिए तो सिंपल सा हो जाता है। और वेट भी दे रखा है 2 4 1 7 3 2 1 5। तो जिस तरह का कॉन्सेप्ट ऐसे है जैसे ये 3 नोड्स है ना, आप यहां पर हो, ये U है ये V है, तो इनिशियली डिस्टेंस ऑफ दिस सोर्स टू V इज इंफिनिटी बिकॉज डायरेक्ट पाथ नहीं है, और डिस्टेंस फ्रॉम S टू V इज 2, तो ऐसे होता है इनिशियली। फिर आप आगे बढ़ोगे और बोलोगे कि ठीक है, सोर्स का U से 2 था तो यहां से 2 + 4 6 होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को एक टेक्निकल टर्म दी जाती है कि जब भी आप इंफिनिटी से डिस्टेंस असाइन करते हो तो इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन बोला जाता है, टर्म है बस, ठीक है। कभी कोई गेट का एग्जाम दो या कुछ और दो, या कभी कभी इंटरव्यूअर्स भी पूछ लेते हैं रिलैक्सेशन क्या होता है, तो ये है। अगर यहां से यहां का डिस्टेंस फ्रेंड्स है 8, तो इनिशियली ये 8 होगा, इनिशियली ये 8 होगा, लेकिन जब आप ये वाला पाथ देखोगे तो इसको 6 से अपडेट कर दोगे। तो यहाँ पर ग्रीड क्या है, यहाँ पर ग्रीड है कि अगर आपको पहले उससे छोटा पाथ दिख रहा है तो अपडेट कर दो उससे, बस ये है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ग्रिड में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार आपने 6 असाइन कर दिया तो अगर आपको कोई छोटा पाथ मिल भी गया ना कहीं और से घूम घाम के, तो भी आप रीअसाइन नहीं करोगे, ये इसका इशू है, ये ग्रीडी एल्गोरिथम का नेगेटिव है। आई होप सबको समझ में आया हो मैंने क्या कहा है। ग्रीडी एल्गोरिथम हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो पीछे जाती है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था। एक बार असाइन कर दिया फिर पीछे नहीं जाओगे मुड़ के। तो देख लेते हैं यहाँ पे भी क्या है, कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट वाइज। तो सोर्स है, यहाँ पे आपका ड्राइवर खड़ा है और आप सब इन जगह पर लोकेटेड हो। सिंस आप सबका कोई पाथ नहीं है वहां से, तो इसको इन्फिनिटी असाइन करूंगा। यहां से यहां है तो इसको 2, यहां से यहां है तो इसको 4, है ना। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या करूं, फिर से पाथ असाइन करूंगा मैं। अब मैं 2 से आगे बढ़ूंगा, एक तो इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा यहाँ पर 3 है, तो 4 जो है वो 3 से अपडेट हो गया, और मैं यहां से यहाँ गया तो ये 9 से अपडेट हो गया। और जब आपने इसको अपडेट कर दिया तो बोल दिया हो गए, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब आपने यहां से आगे जा रहे हो तो ये 11 हो रहा है, और साथ साथ 3 + 3 6 भी हो रहा है, तो इसको 11 की जगह 6 से अपडेट कर दोगे। पहले इंफिनिटी था, इंफिनिटी हमने इसलिए लिया क्योंकि इंफिनिटी हाईएस्ट वैल्यू होती है, तो कंपेयर जब करोगे तो छोटा आएगा, तो इंफिनिटी से अपडेट मतलब इसको अपडेट कर दो। तो ये 6 जब आ गया तो आपने देखा यहां से यहाँ एक पाथ जा रहा है 8, 6 + 2 ना, तो इसको 9 को 8 से रिप्लेस कर दोगे, और यहां से यहां कितने में जाओगे, 11, है ना, 11। अब सिर्फ 4 से यहां बचा, तो 8 + 1 9,
तो ये हो गया आंसर, फाइनल आंसर सब में ऐसे अटैच हो गए। मतलब 1 से 2 जाने का फाइनल 2 है, 1 से 3 जाने का 3 है, 1 से 4 जाने का 8 है फाइनल, 1 से 5 जाने का 6 है, 1 से 6 जाने का 9 है। तो ये है बस डिजिक्स्ट्रा, और कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ जी बताइए। हम जो है इसमें एन नोड्स विजिट कर रहे हैं, और हर नोड से हम चेक कर रहे हैं क्या ये कितनी नोड्स को रिलैक्स कर पाएगा। रिलैक्स का मतलब उससे छोटा पार्ट ढूंढ पाएगा। तो एन इंटू एन ओ एन स्क्वायर, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है डिजिक्स्ट्रा की। फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम एन नोड्स विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे 6 नोड है, 6 नोड विजिट कर रहे हैं, और हर नोड से हम चेक कर रहे हैं क्या ये कितनी नोड्स को विजिट कर पाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर। किसी को डाउट है? इसका निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से, सोर्स से। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस 5 है, यहाँ पे डिस्टेंस 2 है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस 3 हो गया, और यहाँ पे डिस्टेंस 0 हो गया, है ना। तो ये इसका नुकसान है। तो मतलब मेरा ये समझाने का मतलब क्या था कि कोई पूछ सकता है आपसे कि डिजिक्स्ट्रा का ड्रॉबैक क्या है। डिजिक्स्ट्रा का ड्रॉबैक यही है कि देखिए ये रिलैक्स हो गया, फिर से वापस आए, और फिर नीचे 0 पाथ असाइन कर दिया इसे। ये इसका ड्रॉबैक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए 1 से 4 हमारा 5 आया, 1 से 2 2 आया। अब हम आगे बढ़े, ये 7 हो गया। अब वापस गए, ये तो -3 हो जा रहा है ना। -3 हो जा रहा है ना वैल्यू। तो ये इसमें इशू है एक डिजिक्स्ट्रा में, कि ये फाइनली जो है पाथ अपडेट करता ही जा रहा है। होना ये चाहिए था, इसका इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर एक बार रिलैक्स कर दिया गया है तो फिर से अपडेट मत करो। लेकिन फिर क्या होगा कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिल पाएगा। तो पॉइंट यही है समझाने का कि अगर आपसे कभी पेपर वगैरह में पूछा जाता है तो ये इसका ड्रॉबैक बता सकते हो कि नोड्स विच आर ऑलरेडी रिलैक्स्ड उनको ये नेगेटिव में भी सेट कर सकता है, अगर नेगेटिव है तो वैल्यूज। नेगेटिव नहीं है तो कोई इशू नहीं है। बस यही है। तो ये था डिजिक्स्ट्रा। तो कभी कभी क्या होता है कि ग्राफ्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो इतने टफ होते नहीं है, लेकिन हम उनको देख के डर जाते हैं। तो वो चीज आपको थोड़ी सी अवॉइड करनी है। इनको बस एक एक बार पढ़ना है डिजिक्स्ट्रा को। डिजिक्स्ट्रा यूजेस ग्रीडी एल्गोरिथम, इट डज नॉट यूज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डिजिक्स्ट्रा व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिजिक्स्ट्रा इज कि जो सोर्स है ना, इससे सारे डिस्टेंस निकाल डालो शॉर्टेस्ट। तो अगर ये कैब ड्राइवर है उबर का, तो आपसे सारे डिस्टेंस निकाल के दे देगा और रास्ता भी बता देगा। तो ये है। सो दिस इज ऑल। In Sunday's lecture, we will talk about dynamic programming.
If there is anybody's doubt in anybody's mind, then please let me know. If you want कि ये भी डिस्कस होना चाहिए क्लासेस में जो नहीं हुआ है. Explain how adjacency list time complexity is V plus E. Okay. या ये बनाते ही नहीं ना, अनडायरेक्टेड है, ठीक है. 1 के साथ 2 3 एसोसिएटेड है, 2 के साथ 1 और 4 एसोसिएटेड है, 3 के साथ 1 4 एसोसिएटेड, 4 के साथ क्या एसोसिएटेड है, 2 3 5 6, 5 के साथ 4 एसोसिएटेड है, 6 के साथ 4 एसोसिएटेड. तो इसको अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये जो है ये 6 वर्टिसेस है और इसमें एडजेस देखिए 1 2 3 4 5 6 एडजेस है और यहाँ पर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 प्लस ई हो गया विच इज नथिंग बस ओ प्लस वी, जिसको आप लिख सकते हो अगर ओ प्लस ई तो कुछ होता नहीं ना, इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो. तो फाइनली आप इसको ओ एन ही बोलते हो या v और e दोनों को n के इक्वल मान लो, ठीक है. o प्लस 3n यहां से निकाल लो ओ एन, तो फाइनल आंसर ओ एन आता है. क्लियर सिद्धार्थ? फाइनली आपको ओ एन में बोलना है. Yes, Siddharth, any doubt? Yeah, shall I make another graph? You want to take another graph? 6 vertices, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edges 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. है ना? तो ये हो गया. अब इसको ही हम डायरेक्टेड ग्राफ बना देते हैं. तो 1 2 3 से कनेक्टेड, 2 जो है वो सिर्फ 4 से कनेक्टेड है, 3 किससे कनेक्टेड है, सिर्फ 4 से. 4 किससे कनेक्टेड है, 5 और 6 से. 5 किसी से कनेक्टेड नहीं है, 6 किसी से कनेक्टेड नहीं है. 1 2 3 4 5 6 ओ वी, 1 2 3 4 5 6 ओ ई. This can be represented like O plus V plus E. This can be represented like, अगर हम V E को दोनों को N मान लें, 2N and this is O. Right? Anybody, any doubt? ऐसे हो गया. तो आपसे अगर कोई डीप में जाने को बोले भाई O प्लस 2E बोल देना. किसी को अगर ओ मतलब ओ वी प्लस 2E, अगर किसी को ज्यादा डीप में समझना है. अदरवाइज इंटरव्यूअर विल बी, मोस्ट इंटरव्यूअर्स विल बी हैप्पी इफ यू से ओ एन, वो उसमें खुश हो जाएंगे. एडजेसेंसी मैट्रिक्स में ओ एन स्क्वायर. हाँ बताइए, अब किसी को डाउट हो तो. एनी अदर डाउट? क्लियर सिद्धार्थ, क्या डाउट है इसमें अब कोई?
So if there is no doubt, then we can say goodbye for tonight, and then we will meet on Sunday, right? Okay, then goodbye. Take care. Try to do the STL assignment. सबसे important. कुछ और करो या ना करो, STL कर देना, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। और कोई डाउट हो कि कब डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज करना चाहिए, वो सोच के आना, वो भी डिस्कस कर लेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो बाय, टेक केयर।